آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں میز کے پیچھے ایک ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ اس جام سے بار بار چسکیاں لے کر اس طرح شراب پی رہا تھا جیسے اس کے ہر گھونٹ سے باقاعدہ لطف اندوز ہو رہا ہو کہ اچانک سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس آدمی نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جبکہ ایک ہاتھ میں جام ویسے ہی موجود تھا۔ ماسٹر بول رہا ہوں، اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ جیکب بول رہا ہوں ماسٹر، پاکیشیائی گروپ کو چیک کر لیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ماسٹر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت جوش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ کیسے، کہاں، پوری تفصیل بتاؤ، ماسٹر نے تیز اور پرجوش لہجے میں کہا۔ میری ڈیوٹی آپ نے گولڈن کلب میں لگائی تھی، جیکب نے کہا۔ اوہ تو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لوگ، ماسٹر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ گولڈن کلب کے ہال میں ایک مقامی آدمی موجود تھا۔ وہ شراب کی بجائے مسلسل ہاٹ کافی پیتا رہا، جس کی وجہ سے میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا کیونکہ ایک مقامی آدمی کا گولڈن کلب جیسے ماحول میں شراب کی بجائے مسلسل کافی پینا انوکھی بات ہے۔ بہرحال گولڈن کلب کے ویٹر سے اس نے بل دیتے ہوئے جس انداز میں بات کی اور ایک بڑا نوٹ اسے خاموشی سے دیا، اس پر میں مزید مشکوک ہو گیا۔ ویٹر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر بقایا رقم لے کر آیا اور اس نے اس آدمی سے بڑے مشکوک انداز میں بات کی۔ اس کے بعد مقامی آدمی اندرونی طرف بنے ہوئے اسپیشل رومز کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس آدمی کی نگرانی شروع کر دی تو مجھے معلوم ہوا کہ اسپیشل روم نمبر 12 میں اس کے علاوہ گولڈن کلب کا سب سے بوڑھا ویٹر اور چیف تھامسن کا سابقہ ڈرائیور بھی گیا ہے، حالانکہ اس کی وہاں ڈیوٹی نہیں تھی، جس پر میں مزید مشکوک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی باہر آیا اور سیدھا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس ویٹر سے پوچھ گچھ کروں، لیکن پھر یہ آدمی غائب ہو جاتا، اس لیے میں نے اس آدمی کی نگرانی شروع کر دی اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ بھی اپنی نگرانی کی طرف سے پوری طرح چوکنا ہے اور اس کا انداز بھی تربیت یافتہ افراد جیسا ہی تھا، لیکن وہ مجھے مارک نہ کر سکا۔ پھر وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر سڑک پر آ گیا تو میں نے اس ٹیکسی کے پیچھے بمپر پر RT1 شوٹ کر دیا اور خود کار میں بیٹھ کر RT1 کو چیک کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ٹیکسی نیشنل گارڈن کے گیٹ پر جا کر رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہی ٹیکسی واپس آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی نیشنل گارڈن میں داخل ہوا ہے، چنانچہ میں نے کار وہاں جا کر روکی ہی تھی کہ مجھے وہ آدمی 3 اور آدمیوں کے ساتھ گیٹ سے باہر آتا دکھائی دیا۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل حبشی بھی تھا اور پھر یہ چاروں ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر لیک ویو کالونی کے گیٹ پر پہنچ کر اتر گئے اور پیدل آگے بڑھنے لگے۔ میں نے بھی اپنی کار وہیں ایک طرف روک دی اور پھر میں نے ان کی نگرانی پیدل چل کر کی۔ اب یہ لوگ کوٹھی نمبر 18 کے سامنے موجود ہیں اور میں یہاں قریب ہی ایک پبلک فون بوتھ سے آپ کو کال کر رہا ہوں، جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کوٹھی میں کون لوگ رہتے ہیں؟ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے باس، ویسے ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اس کوٹھی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ان کی نگرانی جاری رکھو، میں خود آ رہا ہوں، ماسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا جام وہ دوران گفتگو ختم کر کے میز پر رکھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی لیک ویو کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لیک ویو کالونی کے آغاز میں ہی اسے جیکب کی کار پارکنگ میں کھڑی نظر آئی تو اس نے
अपनी कार भी वहीं पार्क कर दी और कार से नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता कोठी नंबर 18 की तरफ बढ़ता चला गया। बॉस अचानक एक दरख्त की ओर से निकलकर एक नौजवान उसकी तरफ बढ़ा तो मास्टर इस तरह रुक गया जैसे अचानक उसका कोई पुराना दोस्त राह चलते मिल गया हो। क्या रिपोर्ट है जैकब? मास्टर ने कहा। बॉस, उन लोगों ने अंदर पहले बाकायदा बेहोश कर देने वाली गैस फायर की है और फिर ये अंदर चले गए हैं और अभी तक अंदर ही हैं, जैकब ने जवाब दिया। कितनी देर हुई है उन्हें अंदर गए हुए? मास्टर ने पूछा। 10 मिनट हो गए होंगे, जैकब ने जवाब दिया। तुम्हारे पास गैस पिस्टल है? मास्टर ने पूछा। यस बॉस, मैंने पहले ही कार से निकाल लिया था, जैकब ने जवाब दिया। तो जाकर अंदर गैस फायर कर दो, जल्दी करो ताकि हम चेक कर सकें कि ये लोग कौन हैं और इस कोठी में क्यों आए हैं, मास्टर ने कहा। तो जैकब सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर वो कोठी की साइड गली में दाखिल होकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। मास्टर वहीं रुका रहा। थोड़ी देर बाद जैकब वापस आ गया। मैंने 8 फायर किए हैं ताकि गैस हर तरफ फैल जाए, जैकब ने वापस आकर कहा। ठीक है, 10 मिनट बाद उकबी तरफ से जाकर छोटा फाटक खोल देना ताकि मैं अंदर जा सकूं, मास्टर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और जैकब ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक बार फिर सड़क क्रॉस करके तेज तेज कदम उठाता साइड गली में गायब हो गया। फिर तकरीबन 12-13 मिनट बाद छोटा फाटक खुला और जैकब की शक्ल नजर आई तो मास्टर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा और फिर छोटे फाटक से अंदर दाखिल हो गया। ये एक खासी बड़ी कोठी थी जिसका पोर्च खाली पड़ा हुआ था। अलबत्ता बरामदे में एक देव हैकल आदमी फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जैकब ने छोटा फाटक बंद कर दिया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ते चले गए। कोठी में उन चारों के अलावा और कोई आदमी नहीं है। फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर ने सारी कोठी घूम लेने के बाद हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है बॉस कि वेटर ने उन्हें चक्कर देकर उनसे भारी रकम ईंट ली है। उसे मालूम होगा कि ये कोठी खाली है, इसलिए यहाँ का पता बता दिया होगा। वेटर ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये लोग उस वेटर से क्या मालूम करना चाहते थे? मास्टर ने कहा। ये तो वही बताएंगे बॉस, जैकब ने कहा। क्या नाम है उस वेटर का जो स्पेशल रूम में गया था? मास्टर ने कहा। रॉजर नाम है उसका, जैकब ने जवाब दिया। तो मास्टर ने आगे बढ़कर एक तरफ मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया। उसमें टोन मौजूद थी। उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गोल्डन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मार्टी से बात कराओ, मैं मास्टर बोल रहा हूँ, मास्टर ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मार्टी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मास्टर बोल रहा हूँ मार्टी, तुम्हारे यहाँ एक वेटर है रॉजर, मास्टर ने कहा। यस मास्टर, है हुक्म, मार्टी ने जवाब दिया। उसे अपने ऑफिस में बुलाओ और उसे समझा दो कि मेरी बात का वो दुरुस्त जवाब दे, वरना वो मौत के घाट भी उतर सकता है, मास्टर ने कहा। यस मास्टर, वो वैसे भी समझदार आदमी है, वो आपसे क्यों झूठ बोलेगा, मार्टी ने जवाब दिया। बुलाओ उसे, मैं 10 मिनट बाद फोन करूंगा, मास्टर ने कहा और इसके साथ ही उसने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मास्टर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मास्टर बोल रहा हूँ, रुथमैन से बात कराओ, मास्टर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो बॉस, मैं रुथमैन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रुथमैन, लेक व्यू कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में एक वैगन भेज दो। मैं और जैकब वहीं हैं। यहाँ से 4 बेहोश अफराद को उस वैगन में डालकर हेडक्वार्टर पहुँचाना है ताकि उनकी तफसीली चेकिंग हो सके, मास्टर ने कहा। यस बॉस,
दूसरी तरफ से कहा गया तो मास्टर ने क्रेडल दबाकर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गोल्डन क्लब। राब्ता कायम होते ही नुस्वानी आवाज सुनाई दी, मार्टी से बात कराओ। मास्टर बोल रहा हूँ। मास्टर ने कहा, यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया, हेलो, मार्टी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मार्टी की आवाज सुनाई दी, मास्टर बोल रहा हूँ। रॉजर मौजूद है? मास्टर ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, उसे रिसीवर दो। मास्टर ने कहा, वेटर रॉजर बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक सहमी हुई सी आवाज सुनाई दी। लहजे और आवाज से ही जाहिर होता था कि बोलने वाला काफी उम्र का है। रॉजर, आज तुम एक स्पेशल रूम में एक अजनबी से मिले हो और फिर वो अजनबी तुम्हारी दी हुई टिप की वजह से लेक व्यू कलूली की कोठी नंबर 18 में पहुंचा। तुम ये बताओ कि उस अजनबी ने तुमसे क्या पूछा था और तुमने उसे इस कोठी का पता क्यों दिया था? मास्टर ने सर्द लहजे में कहा, जनाब मैं बता देता हूँ। मुझे वेटर सैमुअल ने आकर बताया कि एक अजनबी किसी पुराने वेटर से मालूमात हासिल करना चाहता है और बड़ी रकम उसके पास है। तो मैं तैयार हो गया क्योंकि ऐसे लोग हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हम उन्हें उल्टी सीधी बातें करके उनसे भारी रकमें वसूल कर लेते हैं। स्पेशल रूम में उस आदमी ने मुझसे पूछा कि चीफ थॉमसन का स्पेशल पॉइंट कहाँ है, तो मैं चौंक पड़ा। जाहिर है मैं उसे इस बारे में तो नहीं बता सकता था, लेकिन चूंकि उसने भारी रकम की ऑफर की थी इसलिए मैंने उसे लेक व्यू कॉलोनी की कोठी नंबर 18 का पता बता दिया। मुझे मालूम है कि ये कोठी गुज़श्ता माह से खाली पड़ी हुई है और मैंने ये बताकर उससे भारी रकम वसूल कर ली। वेटर रॉजर ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि चीफ का स्पेशल पॉइंट कहाँ है? मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, यस सर, मैं उनका तवील अरसे तक ड्राइवर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है, लेकिन जाहिर है मैं किसी अजनबी को तो नहीं बता सकता था। रॉजर ने कहा, लेकिन जब वो उस कोठी को खाली पाकर तुमसे दोबारा राब्ता करते तो तुम क्या जवाब देते? मास्टर ने कहा, जनाब मैंने उन्हें ये तो नहीं कहा कि वहाँ चीफ भी मौजूद है। उन्होंने पता पूछा और मैंने बता दिया, बात खत्म। रॉजर ने कहा, ओके, रिसीवर मार्टी को दो। मास्टर ने कहा, यस मास्टर। चंद लम्हों बाद मार्टी की आवाज सुनाई दी। मार्टी, उन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि चीफ स्पेशल पॉइंट पर मौजूद है? क्या तुमने उन्हें बताया है? क्योंकि मेरा अंदाजा है कि चीफ ने जरूर तुमसे राब्ता करके ये बात की होगी। मास्टर ने कहा, चीफ को एयरपोर्ट से कार में लेकर स्पेशल पॉइंट पर मैंने खुद पहुंचाया था जनाब, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही बता सकता हूं। अलबत्ता लॉर्ड साहब की कॉल आई थी, उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था। दूसरी तरफ से कहा गया, लॉर्ड साहब की कॉल और तुम्हारे पास? मास्टर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, उन्होंने कोड कॉल की थी रॉबर्ट के नाम से और ये कोड कॉल उस वक्त की जाती है जब कोई इमरजेंसी हो। मार्टी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है। मास्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, वैगन अभी पहुँच जाएगी, तुम इन्हें उसमें लाद कर ले आना। मास्टर ने साथ खड़े जैकब से कहा, यस बॉस। जैकब ने जवाब दिया और मास्टर सर हिलाता हुआ तेज तेज कदम उठाता कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां थे। रॉजर से उनका चीफ के बारे में मालूम करना उसके लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि उन्हें किसी तरह भी ये मालूम ना हो सकता था कि चीफ इसराइल से ना सिर्फ वापस फ्रांस पहुंच गया है बल्कि स्पेशल पॉइंट पर है। और इस बात से ये भी जाहिर होता था कि ये वही ग्रुप है जिसकी उसे तलाश थी। एक बार तो उसे ख्याल आया कि वो इन्हें यहीं गोलियां मारकर हलाक कर दे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो पहले उनके मेकअप वॉश करके पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था और उसे मालूम था
के हेडक्वार्टर पहुंचकर ये लोग चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, हकीर कैंचुओं की तरह बेबस होकर रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी कार ट्रांस कॉलोनी में दाखिल होकर एक बड़ी कोठी के गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। उसने 2 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक मैकेनिकी अंदाज में खुल गया और मास्टर कार अंदर ले गया। उसने पोर्च में जाकर कार रोकी और नीचे उतरा तो एक मुसल्लह आदमी तेजी से आगे बढ़ आया और उसने मास्टर को सलाम किया। वैगन पर 4 बेहोश अफराद को लाया जा रहा है। एंथोनी से कह देना कि उनके मेकअप वॉश करके उन्हें ब्लैक रूम में कुर्सियों पर जकड़ दे और फिर मुझे इतला दे, मास्टर ने उस आदमी से कहा। यस बॉस, उस आदमी ने मौतबाना लहजे में कहा और मास्टर तेज तेज कदम उठाता बरामदे में पहुंचकर दरमियानी राहदारी में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो एक तय खाने में पहुंच गया जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। उसने कुर्सी पर बैठकर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन फिर उसने हाथ वापस खींच लिया। पहले मैं इन लोगों को चेक कर लूं, फिर इन्हें हलाक करके कॉल करूंगा चीफ को, मास्टर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और दराज खोलकर उसने उसमें से शराब की एक छोटी बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने बोतल मुंह से लगा ली। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो मास्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मास्टर ने तेज लहजे में कहा। एंथनी बोल रहा हूँ, ब्लैक रूम से। चारों अफराद मेकअप में नहीं हैं, दूसरी तरफ से कहा गया तो मास्टर बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये मेकअप में नहीं है? क्या मतलब? ये तो एशियाई हैं। मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने सुपर मेकअप चेकर से 2 दफा कोशिश की है बॉस, लेकिन वो वाकई मेकअप में नहीं है। अलबत्ता मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें रॉड्स में जकड़ दिया है। एंथनी ने जवाब दिया। ओह, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ, मास्टर ने कहा और रिसीवर रख कर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अगर ये वो लोग नहीं हैं तो फिर क्यों चीफ के स्पेशल पॉइंट के बारे में पूछ रहे थे? क्या मतलब? कौन हैं ये लोग? मास्टर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। अच्छा हुआ मैंने उन्हें वहीं उस कोठी में हलाक नहीं कर दिया, वरना हम मुतमईन होकर बैठ जाते और असल ग्रुप काम करता रहता। अब ये खुद बताएंगे कि ये कौन है, मास्टर ने राहदारी में चलते हुए एक बार फिर बुड़बुड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहां दीवार के साथ नस्ब कुर्सियों पर वो 4 आदमी रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे और वो उन्हीं चेहरों में थे जिन चेहरों में मास्टर ने उन्हें उस कोठी में देखा था। एंथनी, मेरे सामने मेकअप दोबारा चेक करो, मास्टर ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस बॉस, वहां मौजूद एक लंबे तिरंगे आदमी ने कहा और हॉल के एक कोने की तरफ बढ़ गया। वहां कुर्सी पर एक जदीद अंदाज का मेकअप वॉशर मौजूद था। फिर एंथनी ने बारी बारी सबके चेहरों को चेक किया, लेकिन मेकअप वाकई वॉश ना हुए तो मास्टर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इन्हें होश में ले आओ ताकि मालूम हो सके कि ये कौन हैं, मास्टर ने कहा तो एंथनी ने इस बात में सर हिला दिया।